Hello, class ninth. This is your second chapter in Moments, The Adventures of Toto, and it is written by Ruskin Bond. Okay, so this adventures and Toto. So, who is Toto? Toto is a monkey. His name is Toto, and adventure means that his daring experience. Okay, so we will study about the daring experiences of this mischievous monkey. Okay, so let's start this chapter. So, this grandfather, see, there's the author, his grandfather, grandmother, Toto, the monkey, and various other characters also, and some more animals also. So, this grandfather, he was very fond of keeping animals. Okay, so he had a private zoo. उनका private zoo था. Okay, so this grandfather bought Toto from a Tonga driver. You know Tonga driver? So he bought Toto from him at the sum of 5 rupees. 5 rupees का उस टाइम का 5 rupees का खरीदा था. ठीक है. So he used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough is that container containing food for the animal. Okay, so he used to tied him there, and this grandfather think that this monkey doesn't look like he should be in that place. So grandfather ने decide किया कि वो इस monkey को अपने zoo में लेके आएंगे. Okay, so then he describes Toto that Toto was a pretty monkey, like he was a pretty looking monkey, and he has bright eyes sparkling with mischief beneath deep set eyebrows. Like उसकी आँख के बारे में पहले बात किया है कि आइज़ जो थी वो स्पार्कलिंग थी, एंड उस स्पार्कलिंग आइज़ में दिख रहा था कि उसके नीचे कि बहुत नॉटी होगा. ठीक है. एंड अबाउट हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट. टीथ एकदम पर्ल की तरह वाइट थे. ठीक है, मोती की तरह. were very often displayed in a smile that frightened the life of an elderly. ठीक है, and you will see that very less because they usually like you have seen monkeys थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं. Okay, but his hands looked dried up as though they had been pickled up in the sun for many years, and हाथ जो थे बहुत सिकुड़े हुए से थे. ऐसा लगा था सूख गए हों, एकदम सूख के ड्राई हो चुके हों. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट. स्टिल उसके फिंगर्स थे बहुत ही क्विक थे, एंड विकेट. विकेट मीन्स शरारत करने के लिए बने थे, कुछ भी हो फट से उठा लेना. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. एंड ही सेइंग दैट उसका जो टेल था वो उसके गुड लुक्स को ऐड कर रहा था. ठीक है. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक. एंड ग्रैंडफादर क्या बिलीव करते थे कि एक टेल लगा दो कोई भी सुंदर लग सकता है. इट्स जस्ट अ थिंग एडेड टू क्रिएट अ ह्यूमर. ओके, सो ही सेइंग दिस tail of him was also serving as a third hand. It was like a third hand, you know, with the help of tail they pick something or they just hang on the branches. So all these things he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. So या तो branch से hang करने के लिए यूज़ करता था tail, या फिर कुछ भी उठाने के लिए जो कि वो अपने हाथ से नहीं उठा सकता था. Okay, then this grandmother of the author, she never liked all these animals, and so grandfather decided that Toto को कुछ दिन के लिए सीक्रेट में रखेंगे और उस दिन बताएंगे जिस दिन ग्रैंडमदर अच्छे मूड में होंगी. सो हम उस दिन जाके डिस्क्लोज कर देंगे कि वी हैड अ मंकी ऑल्सो. ओके, सो व्हाट दे डिड, दे पुट हिम in a little closet opening into this author's bedroom wall. bedroom wall के पास में closet में थोड़ी सी opening थी, वहाँ पे tie कर दिया.
And after few hours later, when this grandfather and the author came back, ये सोच के कि कुछ देर के लिए टोटो को रिलीज़ कर दें, सो व्हाट दे फाउंड दैट द वॉल्स जहाँ पे टाई किया था, it was covered with some ornamental papers. So ornamental papers you can say like wallpapers थे बहुत ही अच्छे सुंदर से, एंड ग्रैंडफादर ने उसे चूज़ करके वॉल पे लगाया था. ओके, एंड because this monkey was very mischievous, so he had scratched everything. और इतना स्क्रैच किया कि उसके पीछे का जो ब्रिक्स था या प्लास्टर था अब वो दिखने लग गया था. ओके, एंड देयर वाज आल्सो अ सॉकेट दैट वाज आल्सो बीन wrenched, लाइक खींच के सॉकेट खींच दिया था. एंड देयर वाज अ स्कूल ब्लेजर. किसका स्कूल ब्लेजर होगा? ऑथर का. सो हिज स्कूल ब्लेजर वॉज ऑल्सो देयर एंड दैट वॉज ऑल्सो इन श्रेड्स. मतलब इस तरह से किया कि देवर पीसेस टॉर्न अपार्ट, पीसेस फट के निकाल दिया, चिथड़े कर दिए वो चीज़. देन आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, बट grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. So what happened, ये जो grandfather है, he was very pleased. He was not getting worried. Why he was not getting worried? Because now he was sure that this monkey was very intelligent. He thought that. So what he's saying, that if he would have left him with all those torn pieces of the blazer, he would have turned them into a rope and then he would have escaped from there. Like वो जो torn pieces हैं उनको जोड़ जोड़ के वो एक rope बना देगा और उसी से वो escape कर सकता है. इतना intelligent है ये. ओके, सो अभी भी उसका presence जो है वो secret है. ठीक है. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter. ठीक है, सर्वेंट के क्वार्टर में एक बिग केज में रख दिया गया है. एंड देयर वर नंबर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट. वहाँ पे अभी भी और सारे भी ग्रैंडफादर के पेट हैं. एंड दे वर लिविंग वेरी इन अ वेरी सोशबली एटमॉस्फेयर. सोशबली एटमॉस्फेयर मीन्स इन अ फ्रेंडली मैनर. जितने भी एनिमल्स थे दे वर लिविंग इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. एंड हु ऑल वर द एनिमल्स? अ टॉर्टोइस, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while his pet goat. So ये सारे animals थे उस जगह पे. But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep. But this monkey, he was very mischievous. पूरी रात कुछ ना कुछ बदमाशी की. He was very mischievous. So he was very naughty and he couldn't let any of these animals sleep. Okay. Then the next day grandfather had to go to Dehradun to collect his pension in सहारनपुर. सो सहारनपुर से उन्हें अपना पेंशन लेना था. सो सोचा कि टोटो को भी साथ में लेके जाएं. एंड बिकॉज ऑफ सम थिंग दिस बॉय द ऑथर ही कुडंट गो विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. ठीक है. देन देयर वाज अ ब्लैक कैनवस किट बैग. इन दैट दे हैव केप्ट टोटो and with some straw at the bottom. Straw is like वो घास ही होती है, like hay and all those, उसका नीचे करके. and because we already have witnessed that he can shred anything, he can taunt any things, and he was very mischievous. So everybody, this grandfather knew that. So उन्होंने इस तरह की चीज़ों के अंदर उसको रख के लेके गए कि वो उसमें से निकल नहीं सके. ठीक है. दैट कैनवस जिसके अंदर रखा था, उस किनारे का जो पूरा था वो इतना स्ट्रॉन्ग था ताकि वो बाइट भी करके उसमें से निकल नहीं सके. सो हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल. सो वो निकलने की कोशिश करने लगा. सो जब अगर कोई बैग के अंदर बंद है और वो हिलेगा तो सब इतना ज़्यादा हिल के कूदने लग गया था कि वो बैग नीचे गिरा और वो रोल करने लगा. और कभी कभी कूदने की कोशिश कर रहा था तो बैग भी कूद रहा था. सो इस तरह के कुछ भी होगा तो हर कोई देखने की कोशिश करेगा कि क्या चीज़ है. तो वहाँ पे देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे सब देखने लग गए. देन टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक वहाँ पे था. बट जैसे टिकट दिखाने का टाइम आया एट दैट रेलवे टर्न स्टाइल,
You know what is a turnstile? Turnstile is a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post, and it allows only one person to go. You might have seen this in railway platform and in some park also. वैसे घूम घूम के होता है, मतलब एक जन ही निकल सकते हैं, वो राउंड घूमता है, बीच बीच में एकदम स्टिक होता है, इनसे उसमें ढेर सारे आर्म्स निकले होते हैं. यू कैन सर्च फॉर दिस एंड यू कैन सी व्हाट इज दिस गेट. ओके, सो जैसे वहाँ पे वो पहुँचे, वहाँ पे उसने अपना सर बाहर निकाल लिया, ठीक है, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. ग्रिन इज शोइंग टीथ, तो गुर्राने की कोशिश इन दैट वे, सो वो करने की कोशिश किया. ओके, सो द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट with great presence of mind and much to grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for this accordingly." So, this poor man, he was surprised to see that there is something there, and he thought that it's a dog. उन्हें लगा, the ticket collector, he thought that it's a dog, and he said that because you carried a dog, you have to pay accordingly. Okay, so here this grandfather, he took out. He actually said that it's not a dog, it's a monkey, and he doesn't qualify to be as a dog. So what he did, he gave 3 rupees as his fare. 3 रुपये और देना पड़ा उसका फेयर, ठीक है. एंड देन जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने पॉकेट से अपने एक टॉर्टॉइज निकाला और कहा कि इसके ये भी चार्ज करेंगे आप, इसका भी मैं कुछ पैसा दूँ. सो टिकट कलेक्टर ने क्लोजली जाके उसे देखा, एंड ही सेड दैट नो, इट्स नॉट अ डॉग, सो नो चार्ज. मतलब डॉग्स के लिए ही एक्स्ट्रा चार्जेस थे. ओके, देन व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, जब ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि टोटो को, देन उसे स्टेबल में रखा गया. देयर वॉज अ फैमिली डोंकी, उनकी एक फैमिली का डोंकी थी एक्चुअली, उसका नाम था नाना, ठीक है. एंड ऑन द फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट, मतलब जाके देखा कि सब सही है, सब कंफर्टेबल है कि नहीं. सो उन्होंने क्या देखा, दैट दिस टोटो, ही वॉज पुलिंग हर हॉल्टर, एंड हॉल्टर इज़ अ रोप, एक रोप होता है जो यहाँ पे सर से बंधा होता है नीचे से, ताकि घोड़े को जब मतलब टांगा बनाएंगे तो खींच के उन्हें कंट्रोल करने के काम आता है. सो वो पकड़ के टोटो खींच रहा था पीछे ताकि वो कुछ खा ना सके. एंड देन जैसे ही नैना वॉज ट्राइंग टू was trying to go away from Toto, this Nana. So उसे उसके पीठ पे चढ़ के उसे मारने लग रहा था, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस Toto, he was doing that, and then this grandfather came and gave Nana a slap across her haunches. Haunches is back part of the body. She jerked back and dragging Toto with her. So उसको calm down करने का कुछ कोशिश किया, but she couldn't do that, and then Nana dragged Toto with her. अपने साथ Toto को drag करते हुए पीछे ले गई, and he has fastened on to her long ears with her sharp little teeth. And this Toto, what he did then, donkeys have long ears. So जो उसका long ears था, उसको अपने sharp teeth से उसे काटने की कोशिश करने लग गया. Because of all these mischievous things that Toto did with Nana, they never became friends. Okay, so ये अच्छे friends नहीं बन पाए. Then a great treat for Toto during winter evening was large bowl of warm water given by grandmother for his bath. So Toto को नहाना बहुत पसंद था, वो भी गर्म पानी में, ठीक है. वो कनिंगली टेम्परेचर टेस्ट करता था. कैसे करता था, पहले एक पैर अंदर डालता था, ठीक है, एंड दूसरा तब जाके डालता था, ठीक है, जैसे कि उसने देखा था ह्यूमंस को करते हुए, ठीक. एंड until he was into the water up to his neck.
ठीक है, और जहाँ तक नेक तक वहीं तक पानी रहता था, उतने के अंदर लाइक ही यूज टू टेक बाथ, प्रॉपर बाथ लेता था कि लाइक ही इज़ द बाथ टब एंड अपना सर वहाँ तक डुबो के लाइक वी यूज टू take bath. Okay, so he used to do that. Then once he is comfortable, what he used to do, he used to rub himself with soap. पहले हाथ पे, then feet पे, then all over his body. He used to do in this way like humans used to do. Then when the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would to run out as quickly to the kitchen fire in order to dry himself. किचन के जो फायर जलता था उसके पास जाके अपने आप को ड्राई करता था, और इतनी देर में अगर कोई उसे हंस देता था उसकी ये सब परफॉर्मेंस देख के, तो उससे थोड़ा हर्ट हो जाता था, ठीक है, और फिर उसके बाद से वो बात करने जाने को नहीं, मतलब रिफ्यूज़ करता था कि अब मैं नहीं नहाऊंगा. Okay, so he has a little bit feelings like humans. Okay, और एक बार क्या हुआ था, अगर उसे ग्रैंड मदर बचाने नहीं आती तो वो अपने आप को बॉयल कर लेता, ठीक है. तो क्या था कि किचन में एक केटल था, उसमें आग नीचे लग रही थी और चाय बनने वाली थी उस पर. सो टोटो को लगा कि ये बेस्ट है, मैं इसमें जाके नहाऊंगा. सो उसको किसी तरह से उसमें घुसा, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया, उसने कोशिश की जब बाहर निकलने की, ही कुडंट हॉप. सो अगर ग्रैंड मदर टाइम पे नहीं आती तो वो हाफ ऑलरेडी बॉयल हो चुका था, पूरा बॉयल हो जाता. ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड वंस विथ हिम. सो धीरे धीरे क्या था कि टोटो का वो जो नॉटी वाला दिमाग का पोर्शन था वो बढ़ने लग गया. लाइक ही वॉज गेटिंग मिस्चीवियस डे बाय डे. एंड वंस व्हाट हैपेंड, this author's aunt came near him, and he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो पकड़ के उसमें छेद करने की कोशिश किया. Then one day what happened, lunch time के टाइम पे, that they have prepared pulao, and that pulao was kept at the center of the dining table के बीच में रखा था. And टोटो जो था वो एंटर किया, and he took with him this bowl of rice, that pulao. And of course ये सब देख के ग्रैंड मदर ने थोड़ा सा चिल्लाया. सो टोटो ने क्या किया, प्लेट उनके ऊपर फेंक दिया, और जैसे जो आंट थी उसकी वो आगे भागने की कोशिश की, उनके ऊपर भी टोटो ने एक ग्लास था पानी का भरा हुआ, वो उनके फेस पे फेंक दिया. एंड जैसे ग्रैंडफादर वहाँ पे आए तो जो टोटो था वो पूरा डिश उठा के और भाग गया, और एक जैक फ्रूट के ट्री पे जाके बैठ गया, और आराम से धीरे धीरे खाने लग गया. पूरा एक भी दाना नहीं बचा, उतना उसने पूरा फिनिश कर दिया. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. सो क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो उनको इंसल्ट फील कराने के लिए, जो ये था टोटो, उसने जो डिश पकड़ा था जिसमें पुलाव था वो उठा के नीचे फेंक दिया, और जैसे वो नीचे गिरा वो पूरा टूट के 100 पीस में ब्रोक कर गया. मीन्स ग्लास का होगा इस वजह से. एंड after all these things that he started doing, it was obviously sure that Toto is not that sort of pet we should keep for long. मतलब वो एज अ पेट नहीं रखा जा सकता था. एंड even grandfather realized, and what he did, he had to return him back to the Tonga driver and sold him back for only 3 rupees. 3 rupees में, मतलब जो 5 rupees में परचेज़ किया था उसे 3 rupees में उन्हें वापस से बेच देना पड़ा, क्योंकि इतना वो शैतान हो चुका था कि उसे घर पे रखा नहीं जा सकता था. ऑलरेडी वी नो कि हम ऐसे ही पेट रख सकते हैं जो एटलीस्ट हमारी बातें सुने, बट वो सिर्फ लॉसेस करने लग गया था. मतलब डिशेस उठा के फेंकना, क्लोथ्स या कर्टन्स जो थे उन्हें श्रेड कर देना, फाड़ देना, ये सब कुछ करना. सो इट was becoming very tough with Toto now. Okay, so this much is there in this chapter about the mischievous monkey Toto and the adventure, that whole experience of keeping Toto at home also. Okay, so this much is there in this chapter. You can read it once. It's a very amusing story, a fun type story. There's nothing much to do, and see and try to read it. Okay, so this much is there. Bye and take care.